morning, students. Today, in political science class, we are going to start a new chapter. This is chapter number 3, and it is called Election and Representation. Okay. You have studied about elections. What are democratic elections that you have already started? Okay. Not every election is a democratic election. First, let us understand. These are the two basic questions. Can we have democracy without holding elections? Is it necessary? डेमोक्रेसी में क्या ज़रूरी है इलेक्शंस का होना? इलेक्शंस के बिना क्या डेमोक्रेसी नहीं हो सकती? If I may say so, आंसर इसका yes and no दोनों ही हो सकता है. Okay, but you need to understand कि यहाँ पे what is more important. ये इलेक्शंस में इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसी में क्यों है? Yes, they can be democracy. Democracy is possible without elections. ऐसा एंशिएंट ग्रीक में होता था जहाँ से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई. People used to participate. Okay, all people, all adults probably, they used to sit together and plan and participate and collective decision making होते थे. Elections नहीं होते थे. Elections की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि what is democracy? Democracy is the rule of the people. So all people, they were the rulers and they used to take decisions collectively. Okay, so उसे हम कहते हैं direct democracy, where people rule directly and participate regularly in decision making. उसे हम direct democracy कहते हैं. But practically, theoretically, yes, direct democracy is possible. सभी लोग आए, बैठे, डिस्कस करें, डिबेट करें and decide करें. But practically that is not possible. For a country like 130 crores, 35 crores, not at all possible. But is it possible only for Delhi? अगर हमने किसी सिटी की बात करें, क्या दिल्ली गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है? Population of 2 crores. Is it possible? No, it's not possible. Even if there is a city of 10 lakh people, it's not possible for people to participate directly and on an everyday basis is possible नहीं है. Okay, that is why इसका alternative, क्योंकि ये possible नहीं है, practically ये possible नहीं है, that is why we have representative democracy. Okay, direct democracy क्योंकि हो नहीं सकती, practical नहीं है वो. People have got other works also. They cannot obviously every day sit together and keep discussing things. And where will they sit? How will they discuss? कैसे होगा? Very complex process, not possible. Okay, so for smaller cities, उसमें population ज़्यादा नहीं थी, केवल एक city की बात हो रही है, तब ये possible हो पाया था, but अभी possible नहीं है. That is why some aspect of direct democracy अभी भी है. हमारा जो पंचायती सिस्टम है, गांव की जो पंचायत है, उसमें अभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू ही रूल होता है. ऑल विलेज पीपल दे सिट डाउन, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, वो सभी बैठते हैं, सभी डिस्कस करते हैं एंड डिसीजंस होते हैं. ओके, सो एट अ वेरी लोअर लेवल, एट अ वेरी लोकल लेवल वी कैन से इट इज पॉसिबल. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेशन, दैट डजंट सीम पॉसिबल. ओके, सो हमने ये रास्ता निकाला, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कि हम अपने पावर, हमारे पास पावर है. डेमोक्रेसी में वी आर द रूलर्स, द सिटीजन्स आर द रूलर्स. ओके, सो सिटीजन्स दे ट्रांसफर देयर पावर टेम्पररीली, नॉट परमानेंट ऑफ कोर्स. हम टेम्पररीली अपना पावर किसी को दे देते हैं. इट इज लाइक दैट आई हैव गॉट सम वर्क एंड आई असाइन माय वर्क टू समवन. ओके, I am not able to go to my bank, so please take this check and withdraw money for me. वो मेरा काम कर रहा है. Okay, so he is my representative. ऐसा ही हम करते हैं इलेक्शंस में. We choose different representatives. हम MLAs चुनते हैं स्टेट लेवल पर और हम MPs चुनते हैं एट द नेशनल लेवल. MPs लोकसभा में जाते हैं, वहाँ पर हमारा काम करते हैं, और MLAs स्टेट असेंबलीज में, विधानसभा में जाते हैं और वहाँ पर वो हमारे लिए काम करते हैं. उसके अलावा हम अलग अलग काम के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. नगर पालिका या नगर जो कॉरपोरेशन है, नगर निगम, वहाँ उनके लिए भी, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्हें भी हम चुनते हैं. विलेज लेवल पर इलेक्शंस होते हैं, उन्हें भी हम चुनते हैं. तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये हमारे बिहाफ पर काम करते हैं फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, जो कि इंडिया में ज़्यादातर है 5 years. आफ्टर 5 years ये जो पावर हमने उन्हें ट्रांसफ़र किया था,
दैट सीजन वो खत्म हो जाता है एंड देन दे अगेन कम टू अस टू ऑब्वियसली गेट दैट पावर अगेन। ओके, तो इलेक्शन एक प्रोसेस है। इलेक्शंस के जरिए हम क्या करते हैं, वी ट्रांसफर आर पावर, हमारे पास जो अथॉरिटी है, जो पावर है रूल करने का, वो हम अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पर पार्टिसिपेट करता है डेमोक्रेसी में और ऐसी डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाते हैं। ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन टुडेज वर्ल्ड आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि ये वर्ड आ गया, तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे आएंगे, इनके लिए इलेक्शंस होंगे। ओनली वे वी कैन गेट दिस पीपल इज थ्रू इलेक्शंस एंड दैट इज व्हाई वी कैन से यस इन टुडेज मॉडर्न डेमोक्रेसीज इट इज नॉट पॉसिबल, इलेक्शंस आर नेसेसरी। ओके, उनके बिना ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा चुनेंगे कैसे, उसका भी एक प्रोसेस होना चाहिए। बट कौन चुनता है, कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कौन इलेक्शन में वोट डाल सकता है, ये सब कैसे डिसाइड होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, क्या रूल्स होंगे, ओके, ये कैसे डिसाइड होता है। दिस इज ऑल डन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम है to lay down guidelines and rules and regulations of how a government will be formed। तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चुने जाएंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का जो तरीका है वो इलेक्शंस के थ्रू कैसे चुने जाएंगे, ये सारे जो रूल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दीज रूल्स ऑफ कौन इलेक्शन में लड़ेगा, कंटेस्ट करेगा, कौन वोट डालेगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे बनेंगे, और डिफरेंट रूल्स रिलेटेड टू इलेक्शंस दैट लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो दिस क्वेश्चन, कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, कभी पॉसिबल हो पाया था, कई छोटे जगह पर ये पॉसिबल अभी भी हो सकता है, बट ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ऑल मेजर डेमोक्रेसीज, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल, ओनली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज पॉसिबल एंड बिकॉज ये रिप्रेजेंटेटिव हमें चुनने हैं इसलिए इलेक्शंस are necessary। So we can say yes, elections are necessary and we cannot have democracy without elections। Okay, can we hold elections without having democracy? Many countries do। जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वो इलेक्शंस कराते हैं। ओके, चाइना इलेक्शंस होते हैं एवरी 6 years, वो भी अपने इलेक्शंस कराते हैं। वहाँ पर भी पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल करती है, लेकिन और भी पार्टीज हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, बट वी ऑल नो दे कैन बी ओनली वन रिजल्ट इन चाइना, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कैन विन। पार्टी बना सकते हो, लेकिन पार्टी बनाने के लिए भी आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से ही परमिशन लेनी पड़ती है। आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी यू नीड परमिशन फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सो बेसिकली इट्स ऑल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इट्स अ वन पार्टी रूल। इलेक्शंस होते हैं, even though they are not democracy, they can have elections। So even without democracy, yes, elections can be held, elections होते हैं, but then they will not be considered democratic elections। democratic elections के लिए जो conditions fulfill करना जरूरी है, okay, regular interval, universal adult franchise, जितने भी adults हैं सभी को voting right देना होगा आपको, मेल, फीमेल, रिच, पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, everyone will have to be given voting rights above a certain age, जिसे हम अडल्ट कहते हैं। पहले इंडिया में ये 21 था, 1950s के बाद ये 21 रहा कई सालों तक, और फिर इसे रिड्यूस करके कर दिया गया 18 years। तो एवरी पर्सन जो 18 के हो जाते हैं वो अडल्ट कंसिडर किए जाते हैं इंडिया में। कई कंट्रीज में ये लेस भी है, कई कंट्रीज में ये ज़्यादा भी है। ओके, सो इट डिपेंड्स कि अडल्ट की डेफिनेशन अलग कंट्रीज में क्या है, बट ऑल अडल्ट्स मस्ट हैव दीज वोटिंग राइट्स। ओके, सभी के पास अधिकार होना चाहिए इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के लिए। अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तभी हम उन्हें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहेंगे। ओके, सो वी लर्न अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी सभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, इसलिए इलेक्शन इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पर हम ये इलेक्शंस ही पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। ओके, नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, ये हमेशा याद रखना है। टोटली चाइना में इलेक्शंस होते हैं बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड इलेक्शंस। In fact, non-democratic rulers are very keen to present themselves as democratic, को दिखाने के लिए कि हम भी लोगों के चुने हुए हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, we are the rulers of the people, वो इलेक्शंस कराते हैं, but they try and manage the elections कि जीते वही, लेकिन इस तरह के इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कह सकते। ओके, so this is where constitution हर डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है that lays down some basic rules about elections, जैसे who is eligible to vote, कौन वोट डाल सकता है, who is eligible to contest, इलेक्शंस में कौन कंटेस्ट कर सकता है, who is to supervise elections, इलेक्शंस कौन कराएगा, गवर्नमेंट कराएगी, नो गवर्नमेंट कराएगी, देन मोर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होंगे, एक इंडिपेंडेंट बॉडी को कराना होता है। जैसे इंडिया के केस में इट इज द इलेक्शन कमीशन, जिसका काम है इलेक्शंस कराना। इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं होता है, यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ के इलेक्शंस नहीं कराते। So how do the voters choose their representatives? वो कैसे चुनेंगे? How are the votes to be counted and representatives elected? गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, कैसे वोट्स की काउंटिंग होगी, कैसे वोटिंग होगी, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं और इसको कंडक्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और वो इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं। बिकॉज इलेक्शंस के लिए दो वर्ड्स हमेशा यूज होते हैं, दैट इज फ्री एंड फेयर। ओके, इलेक्शंस के साथ हमेशा ये वर्ड फ्री एंड फेयर, पीपल शुड बी फ्री, वोट डालने के लिए या इलेक्शन में खड़े होने के लिए फ्री, उन्हें रोका नहीं जा सकता कि आप वोट नहीं डाल सकते या आप इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते। एवरीवन शुड बी फ्री टू कंटेस्ट, एवरीवन शुड बी फ्री टू वोट। सेकेंड फेयर, उसकी जो तौर तरीके हैं वो सही होने चाहिए। ओके, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हम उन्हें कहते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लाइक मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, उसमें भी यही लिखा हुआ है। और फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस आर अबाउट इंश्योरिंग दैट इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। सी द वर्ड अगेन अपीयर्स, जब भी इलेक्शंस की बात होगी ये फ्री एंड फेयर वर्ड हमेशा आएगा। एंड कैन thus be called democratic. The last two questions are about ensuring a fair representation and election. हम कंटेस्ट करते हैं तो हम रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ओके, इलेक्शन सिस्टम इंडिया का देखते हैं कि क्या है इलेक्शन सिस्टम। यू मे हैव नोटेड अबाउट अ रेफरेंस टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। अलग जगह अलग अलग है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में ही अलग अलग तरीके हैं। वीसी के अमेरिकन प्रेसिडेंट का जब इलेक्शंस होता है तो उसके अलग तौर तरीके होते हैं। हमारे यहाँ जब इलेक्शंस होते हैं अलग अलग तरीके से होते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन नहीं होता है, लोकसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं। हम एमपीज को चुनते हैं, फिर एमपीज अपने लीडर चुनते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका दे चूज अ पर्सन और फिर वो जाके प्रेसिडेंट बनते हैं एंड ही और शी रन्स द गवर्नमेंट एंड obviously the entire America. Okay, वो उनका इलेक्शन सिस्टम, they have got a presidential form of democracy, ours is a parliamentary form of democracy. हर जगह सभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के सेम तरीके से इलेक्शंस होते हैं, जरूरी नहीं है। ओके, इलेक्शंस का फ्री एंड फेयर होना जरूरी है, उसमें बेसिक जो चीजें हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में वो होनी जरूरी है, बट थोड़े तौर तरीके में डिफरेंस आ सकता है। ओके, you may have wondered what these were all about. You may have seen or read about different methods of electioneering or campaigning in the elections. But what are different methods of elections? There is a system of conducting elections. There are authorities and rules about do's and don'ts. Election में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। Okay, उसके सब नियम कानून हैं। Is that what election system is all about? You may have wondered why the Constitution needs to write down how the votes are to be counted and representatives elected. ये सब लिखने की क्या जरूरत है, इतने सारे रूल्स बनाने की जरूरत क्या है? Isn't that very obvious? Okay, we need to, because this question is not as simple as it appears to us. We have got so used to a system of election that we think that there cannot be any other way. In the democratic elections, people vote and their preferences
decides who will win the contest. But they can be very different ways in which people make their choices and very different. ये types of elections की बात हो रही है कि elections अलग अलग तरह के होते हैं. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में ही अलग अलग तरीके के इलेक्शंस की बात करने जा रहे हैं. ओके, और उसमें जो पहला सिस्टम है दैट वी हैव रीड इज अबाउट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. ओके, दिस सिस्टम इज प्रिविलेज्ड इन इंडिया एंड हमने ये सिस्टम इनफैक्ट ब्रिटिश से लिया है. अमेरिका का ये सिस्टम नहीं है. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इस सिस्टम को हम जानेंगे कि क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. ओके, नाउ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. Suppose there is a race and there are 5 people who are running that race. Okay, and the person who winner हम किसे मानते हैं? Who reaches the post, वो जो finishing post होता है, okay, finish post, वहाँ पर जो सबसे पहले पहुँचता है वो winner हो जाता है. But there is no rule कि आपको इतने ही टाइम में पहुँचना है. There is no criteria. In elections, if there are 10 people participating, there are 20, there are 30, sometimes there are so many, 70, 80 people participating in one election. Okay, so who wins? The person जो कि उस रेस में सबसे आगे होगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो जीत जाएगा. Okay, I'll give you an example and you might be thinking, and this is quite peculiar Indian context में अगर आप इसे समझने की कोशिश करें. And I'll give you an example. Suppose there is a constituency and there are 50,000 voters. एक constituency में 50,000 voters हैं and 50,000 voters. Suppose there are 10 people who are contesting the election. 50,000 वोट है, 10,000 लोग हैं. Okay? Sorry. 10 people are contesting and there are 50,000 votes. Obviously elections में कोई किसी को वोट करेगा, कोई किसी को वोट करेगा. And suppose the first person, okay, A, he gets 10,000, B, he gets 12,000, C, he gets 8,000, okay, D, and so on and so forth. 4,000, and suppose this total comes to 50,000. Okay, 50,000 वोटर्स ने वोट डाले, सबको वोट्स मिले, किसी को कम, किसी को ज़्यादा. So who will win? Obviously this person. If we imagine कि बाकी को जो मिले हैं वो कभी मिले हैं 4,000 से, then obviously B, he will be the winner. But how many votes he has got? He's got 12,000 votes. He's got 12,000 votes. 50,000 में से उससे मिले हैं only 12,000, and वो representative बन जाएगा इन 50,000 लोगों का. He has not even got 33% of the votes. Okay? इसे कितने लोग नहीं चाहते हैं? 38,000 people have not voted for him. Only 12,000 have voted. So if you have got 12 marks out of 50 and you are the winner. डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है. इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. कोई 50%, कोई 60%, कोई 80%, कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपको कम से कम 25,000 वोट लाने हैं तभी आप विनर होंगे. नो. ओके, ये वो दौड़ है जैसे कि एथलीट्स दौड़ते हैं, तो जो सबसे पहले पहुंच गया वो जीत गया. वो कितने सेकंड, कितने मिनट में पहुंचा है इसका कोई मतलब नहीं होता. वही है, ये भी एक रेस है. यहाँ पर भी जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल गए, ही बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव, वो जीत जाता है इलेक्शन. इस सिस्टम को हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहेंगे, जो कि रेस में होता है कि जो फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुँच गया. यहाँ पे पोस्ट का मतलब वो जो वही से वर्ड आया है रेस में, जो फिनिश पोस्ट होता है वहाँ तक पहुँचना. तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो उस फिनिश लाइन को क्रॉस कर गया सबसे पहले, वही इलेक्शन जीत जाएगा.
ये सिस्टम हमने अपनाया है, ये ब्रिटिश का सिस्टम है और ये सिस्टम हमने उसे लिया है। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ वोट्स एंड सीट्स का कोई मतलब नहीं होता। यू माइट गेट 40% ऑफ द वोट्स, ओके, एंड स्टिल लूज द इलेक्शन, and you might get 20% of the votes and still win the election. You see the percentage, you can calculate 12,000, 30,000, कितना है, still he has won the election. Okay, and sometimes if there are only two contestants and somebody got 26,000, the other one got 24,000, so he will win the election even after getting nearly 50%, 24,000 वोट के बाद भी आ सकते हो और 12,000 वोट्स के साथ जीत भी सकते हो। 12,000 तो मैंने ज़्यादा लिख दिया। समटाइम्स इवन अ पर्सन विद 10,000 वोट्स कैन विन, कैन इवन विद 8,000। अगर ये मेंबर्स बढ़ते जाएंगे और अगर वोट्स डिवाइड होते जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वोट्स की जरूरत नहीं पड़ती इलेक्शन जीतने के लिए। इस सिस्टम की कमी भी है कि यहाँ पर आपको 38,000 वोटर्स नहीं चाहते हैं, फिर भी आप उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं। सो इट talks of one historic moment in Indian democracy. In the Lok Sabha election in 1984, the Congress party came to power, winning 415 out of 543 Lok Sabha election seats. 543 seats लोक सभा में, इसमें से कांग्रेस को मिलते हैं 415 seats. Okay. So you can imagine 543 Lok Sabha seats में से 415 seats, and this is 1984 के इलेक्शंस में। दिस इज व्हेन इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, इनफैक्ट उनको असैसिनेट कर दिया गया था एंड उनकी सिंपैथी वेव में उनके बेटे राजीव गांधी वो इलेक्शन लड़ रहे थे, कांग्रेस की तरफ से वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे एंड लोगों ने बढ़ चढ़ कर कांग्रेस को वोट किया। कांग्रेस को मिले 450 सीट्स, बट हाउ मेनी वोट्स डिड दे गेट? वोटिंग परसेंटेज उनका कितना था? वोटिंग परसेंटेज वाज 48% ओनली। वोट मिले ओनली 48%। सो आई एम सेइंग कि 50% भी वोट नहीं मिले कांग्रेस को, लेकिन सीट्स 415 आउट ऑफ 543, वो तो 50% से बहुत ज़्यादा है। ओके, तो कई बार कम वोट लेकर भी सीट्स आपकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि ये सिनेरियो होता है। ओके, तो वोट उसे बहुत कम मिल रहा है। 12,000 votes out of 50,000 is 24% only. He has got 24% votes only, but he has won the election. Okay, तो कई बार 48% वोट का शेयर होते हुए भी कांग्रेस को 415 सीट्स आउट ऑफ 543 सीट्स में से उन्हें 415 सीट्स मिल गए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने आपको वोट्स मिले उसी के हिसाब से आपको सीट्स भी आए। हम देख रहे हैं केवल 48% जो उनके वोट्स थे एंड बीजेपी 7.4% उन्हें वोट्स मिले, सीट्स मिली केवल ओनली 2। जनता पार्टी they got 6.7% votes, less than BJP, but they got 10 seats. CPIM 5.7% votes, only 5.7% votes, but 22 seats. Okay, Telugu Desam 4.1% votes and 30 seats. So you can see this chart, a very interesting chart. We'll discuss this in the next class. ओके, एंड 543 ये हमारी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज 543 हैं इंडिया में। लोकसभा की अगर हम बात करें तो उसमें डिवाइड करते हैं। फिर विल सी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो दूसरा तरीका है। अभी आज हमने पढ़ा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। सो दिस इज अबाउट इलेक्शंस, a new chapter and interesting chapter, and we learn the different types of elections जो कि अलग अलग कंट्रीज में, हम केवल इंडिया की नहीं बात करेंगे, हम इजराइल का सिस्टम भी जानेंगे। ओके, एंड वील आल्सो लर्न अबाउट अदर कंट्रीज आल्सो। देन वील ट्राई एंड फाइंड आउट कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे डिफरेंट होता है, रिजर्वेशंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैसे होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए क्या होना ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड एवरीडे जो इलेक्शंस होते हैं उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। Okay, so we'll try and learn the rest of the things in the next class. So thank you. That's all in this class.